Now students, I am going to explain you about identity. Identity means formula. Okay. Beta, it will help you to save your time. And it is so interesting when you will use these identities. Okay. बेटा अगर आपको मैं बोलूँगी you have to multiply binomial by binomial, then you will use the distributive law of multiplication. Okay. And step by step you will solve them. It will take your time. But if you want to save your time and if it is mentioned that you have to use the formula identity, then you are bound to solve the sum using the identity. And as well as when you use the identity formula, it will save your time. In your course, there are 3 important identities that you have to follow. Okay, one by one I will discuss with you. First identity is a plus b का whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Okay, it is the first identity that you have to understand. Beta, a plus b का whole square, that means a plus b multiplied by a plus b 2 times. Yes, that means binomial multiplied by binomial. अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करें, यू विल गेट द आंसर a square plus 2ab plus b square. That is the formula. Okay, so what is the formula? First identity, a plus b का whole square का formula होता है a square plus 2ab plus b square. This is first. Next identity is a minus b का whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. That means a minus b multiplied by a minus b 2 times. Yes, here when you will solve this with the help of distributive law of multiplication, you will get the answer a square minus 2ab plus b square. That is the formula second. That is a minus b का whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. The third formula is a plus b multiplied by a minus b. You will get the answer a square minus b square. Okay, that means अगर आप binomial मल्टीप्लाई बाय बायनोमियल, दैट मीन a प्लस b का मल्टीप्लाई a माइनस b से करो विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यू विल गेट द आंसर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो व्हाट इज द थर्ड फॉर्मूला? आप वाइस वर्सा उल्टा भी बोल सकते हो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b. दिस 3 आइडेंटिटी I discussed with you. I want to discuss one more identity with you. This is also very important for you. Here the formula is fourth formula, you can say x plus a multiplied with x plus b. Again binomial to binomial. When you will solve with the help of distributive law of multiplication, you will get the answer x square plus in bracket a plus b multiplied by x plus ab. ओके, आपको ये आएगा, आप यहाँ पे x कॉमन ले लोगे तो आपके अंदर में आएगा a प्लस बी. ओके, दैट इज द फोर्थ फॉर्मूला. These 4 formulas, 4 identities you have to learn and you have to keep it in your mind. Clear? And how you get this formula that I discussed with the help of what? Binomial by binomial multiply, and using the distributive law of multiplication you get this formula. Okay, these 4 formulas you have to keep it in your mind. Now we will solve the example based on these identities. First example, यूजिंग द आइडेंटिटी. देखो यहाँ पे मेंशन है कि आपको आइडेंटिटी से ही सॉल्व करना है, तो यू आर बाउंड टू यूज द आइडेंटिटी फॉर्मूला. फर्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर. अगेन दैट मीन्स 2x प्लस 3y मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y. अगर आप सिंपल मल्टीप्लाई करो तो बायनोमियल टू बायनोमियल यू कैन मल्टीप्लाई. देखिए यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई किया हुआ भी है, बायनोमियल टू बायनोमियल, एंड यू विल गेट दिस आंसर विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. लेकिन अभी हमको इससे सॉल्व नहीं करना है, हमें किससे सॉल्व करना है? आइडेंटिटी से. तो अगर आप सोचो 2x को आप मानो a और 3y को मानो b, दैट मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा. तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, अभी आपने सीखा था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. क्लियर? सो यू विल यूज a स्क्वायर मीन्स 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3y. ओके, प्लस b का होल स्क्वायर, दैट मीन 3y का होल स्क्वायर. अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2x का होल स्क्वायर दैट मीन 4x स्क्वायर, प्लस आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 12xy. नेक्स्ट प्लस 3y का होल स्क्वायर दैट मीन प्लस 9y स्क्वायर. विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 steps you get the answer.
So what you get with the help of using the identity, we can save the time also, and it will take the less step, कम step में हमारा आंसर आ जाता है. क्लियर? सो आप बताइए, दिस इज गुड और दिस इज, यस ऑब्वियसली दिस इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो एंड इट विल टेक लेस टाइम. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 103 का होल स्क्वायर. अब आप देखो, आप 103 का होल स्क्वायर, दैट मीन 103 मल्टीप्लाई बाय 103. आप इसको सिंपल वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट इट विल अगेन take the more time, but with the help of formula identity we can solve in less step and we can save our time. We can write this 100 plus 3 ka whole square. Here 100 means A and 3 means B, that means A plus B ka whole square. Again that is the formula, A square plus 2AB plus B square. A means 100, B means 3 here, so A square, that means 100 का whole square plus 2AB, that means 2 multiply 100 multiply 3 plus B square, 3 का whole square. When you solve, you will get the answer 10609, 10,609. So it is simple. Or when you multiply 103 multiply by 103, what you are getting, which is simple. This is with the help of using identity, and it is so attractive. It is so interesting also. Clear? Next example. यूजिंग आइडेंटिटी सेकेंड. अब आपको सेकेंड आइडेंटिटी यूज करनी है. फर्स्ट एग्जाम्पल 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर. अगेन 4p मीन्स A, 3q मीन्स B, A माइनस B का होल स्क्वायर. व्हाट इज द फॉर्मूला? A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर. क्लियर? अगर आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो आप क्या करोगे? 4p माइनस 3q मल्टीप्लाई बाय 4p माइनस 3q. It will take more steps and you will get the answer. But here we have to use the identity. So we will use the identity. 4p means A, 3q means B. So A means 4p का whole square minus 2AB. That means 2 multiply 4p multiply 3q plus B square. That means 3q का whole square. When you solve, you will get 4p square, 16p square. आप इन तीनों को multiply करोगे, you will get minus 24pq plus 3q square. इसको solve करेंगे, you will get plus 9q square. That is the answer. सो आइडेंटिटी यूज करने से क्या हो रहा है? कम ही स्टेप्स में हमारे आंसर आ जा रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट 4.9 का होल स्क्वायर. दैट मीन्स 4.9 मल्टीप्लाई बाय 4.9. आप ऐसे भी कर सकते हो, बट अगेन इट विल टेक द टाइम. हाउ यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी? वी कैन राइट दिस 5.0 माइनस 0.1 इट इज इक्वल टू 4.9 एंड होल स्क्वायर दिया हुआ है. तो 5.0 A, 0.1 B, A minus B का whole square. So here we can use the formula A minus B का whole square, that means A square minus 2AB plus B square. Again A की जगह हमको 5.0 लिखना है, B की जगह 0.1. When you will solve, you will get the answer 24.01. Clear? Now next example using identity 3. थर्ड आइडेंटिटी को आपको यूज करना है. देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल 3/2m plus 2/3n multiply by 3/2m minus 2/3n. दैट मीन बायनोमियल मल्टीप्लाई बाय बायनोमियल. आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, बट हमको यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है. क्लियर? तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हाउ सिंपली यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी. अगर आप इसको बायनोमियल टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन से करेंगे तो इट विल टेक सो मच टाइम. Okay, and with the help of identity you can solve easily and very quickly you can solve. अब आप देखो, this is A और this is B. That means A plus B, A minus B. Third identity, A plus B multiply A minus B, that is equal to A square minus B square. याद है आपको आइडेंटिटी? ओके, तो चलिए हमने इसी में लिख दिया है. क्या लिखेंगे हम? A square minus B square. तो A स्क्वायर मतलब A क्या है? 3/2m होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी 2/3n होल स्क्वायर. हमने इसको सॉल्व किया. 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, n का स्क्वायर n स्क्वायर. देखिए इजिली 2 स्टेप्स में सॉल्व, बट यू हैव टू कीप इट व्हाट इन योर माइंड. आइडेंटिटी फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा. ओके, नेक्स्ट 983 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर. ओके, दैट मीन्स
ए स्क्वायर, अगर आप 983 को ए मानो, 17 को बी मानो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो। ए माइनस दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं हम इसको? 983 को अगर हम ए माने दैट मीन्स ए स्क्वायर, माइनस 17 को अगर हम बी माने दैट मीन्स बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन आप इसका फॉर्मूला क्या है अगर अपोजिट करके देखें तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं, ए स्क्वायर क्या है हमारा, ए क्या है 983 और बी क्या है 17। तो हम लिख सकते हैं 983 प्लस 17 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 983 माइनस 17। आप इनको सॉल्व करेंगे, क्लियर, यू विल गेट व्हाट आंसर दिस 966,000, okay, 9,66,000. Okay, so with the help of identity you can solve very easily. Now next example 194 multiply 206. अब आपको आइडेंटिटी से सॉल्व करना है तो आपको आइडेंटिटी में इसको लेके आना होगा। तो 194 को आप लिख सकते हो 200 माइनस 6, यू हैव टू यूज योर माइंड, मल्टीप्लाई बाय 206 को आप लिख सकते हो 200 प्लस 6। क्लियर, आपने ऐसा बनाया कि आपका ए सेम आए और बी भी सेम आए। क्लियर, तो आपका ए माइनस बी, इसको ए मानो इसको बी, तो ए माइनस बी और ये ए प्लस बी। अगेन आपका इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला यूज करना है आइडेंटिटी। तो ए स्क्वायर मीन्स 200 स्क्वायर माइनस बी मतलब 6 स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व किया, 200 स्क्वायर मीन 200 मल्टीप्लाई 200, आपने को मिला 40,000 माइनस 6 का स्क्वायर में 6 मल्टीप्लाई 6 36। इसको माइनस किया, यू विल गेट 39,964। सो what you observe, with the help of using identity we can solve the sum very easily and it is so attractive, so interesting. Next example, use the identity x plus a x plus b is equal to x square plus a plus b multiply by x plus ab. आपको दे दिया है कि आपको इसी आइडेंटिटी को यूज करके इस सम को सॉल्व करना है, ठीक है। सो 501 मल्टीप्लाई बाय 502। अब देखो, अब आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है, दैट मीन्स आपको क्या x तो सेम लाना है और a और b डिफरेंट हो सकते हैं, वो नहीं है क्योंकि अलग अलग है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 500 प्लस 1 501, 502 के लिए आप लिख सकते हो 500 प्लस 2। तो आप देखिए x आपका ये सेम आ गया, ओके, ये हो गया x, 1 हो गया a, ये 2 हो गया b, तो x प्लस a x प्लस b बन गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूला में आप डाल दोगे x स्क्वायर, दैट मीन x क्या है 500, तो 500 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a क्या है 1, b क्या है 2, 1 प्लस 2, x क्या है 500 मल्टीप्लाई बाई 500 प्लस a b क्या है 1 मल्टीप्लाई 2, a b मीन्स a इज मल्टीप्लाई by a इज मल्टीप्लाई बाई b, 1 मल्टीप्लाई 2। आपने सॉल्व किया 500 का स्क्वायर, दैट मीन 500 मल्टीप्लाई बाई 500, आपको मिल गया ये 2,50,000। नेक्स्ट आपने इसको सॉल्व किया, यू विल गेट प्लस 1500 और आपने इसको सॉल्व किया, यू विल गेट प्लस 2, यू विल सॉल्व दैम, यू विल गेट दिस 2,51,502, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट अगेन 95 मल्टीप्लाई 103, आपको इस फॉर्मूला में लाना है, यानी x सेम होना चाहिए। तो आप 95 को लिख सकते हो 100 माइनस 5 मल्टीप्लाई 103 को आप लिख सकते हो 100 प्लस 3। क्लियर, अब देखिए 100 हो गया x, देखिए दोनों जगह सेम है, ये 5 हो गया आपका a और 3 हो गया b, तो x माइनस a, यहाँ x प्लस b दिख रहा है आपको, ओके। अब आपको इस फॉर्मूला में डालना है x स्क्वायर प्लस a प्लस b मल्टीप्लाई बाई x प्लस ए बी। आपने डाला तो x स्क्वायर दैट मीन 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो a प्लस b में आपका क्या है -5 प्लस 3, ओके। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाई x दैट मीन मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस ए बी -5 multiplied by 3. You solve that, you will get the answer 9,785. So you have clearly understood that with the help of using the identity, we can solve the sum very easily. But you have to keep it in your mind. You have to learn all the 4 identities and you have to understand how you use these identity in the sum. Clear?